Good morning student. Today our topic is the identical particles. तो इसमें हम पढ़ेंगे exchange symmetry of the wave function. तो if the system of particles on interchanging the position and the spin coordinate of any two particles, there is no physical way to that the change has been made in the system, then the system said to be consist of the identical particles. So there is a fundamental difference between the classical and the quantum mechanical description of the system containing the identical particles. आपने difference भी पढ़ा है quantum और classical physics के अंदर या mechanics बोल सकते हैं इनको. In the classical descriptions we can assign the label to the identical particles and we can illustrate this by the specific example. Suppose a box contains two identical particles, say the electrons, and classically the electrons leveling sharply define the trajectory so that by observing the system constantly we can distinguish between them. And if at some instant level the electrons, उसको हमने नाम दे दिया है electron 1 and 2, we can constant watch their motions without disturbing the system and can tell any later instant which electron is 1 and which is 2. And this is however not possible in the quantum mechanical description of the system, and the uncertainty principle does not allow us to observe the constantly the motion. The electrons without disturbing the system, any experiment can tell only as the electron was located at the given point at the certain instant, but not which was one it. In other words, the quantum mechanics क्या है definite extent of the wave function associated with the each electron result in and the overlapping these wave function and becomes impossible to say which wave function was associated with which particle. Quantum mechanical should take the account the indistinguishability of the identical particles and it should not depend on the assignment levels to identical particle, and this place the restrictions upon the mathematical form of the wave functions required to describe the system of two or more identical particles. अब क्या है, अगर हम सपोज कर रहे हैं कि डिस्क्राइब करें कि जो हम अब वो डिस्कस हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं बॉक्स विद द टू इलेक्ट्रॉन्स, तो क्वांटम जो मैकेनिकली है वी इग्नोर द म्यूचुअल इंट्रैक्शंस ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम इग्नोर कर दें तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स फॉर द सिस्टम कैन बी रिटर्न एज द सम ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर्स फॉर द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स. तो हम उसको क्या लिखेंगे, H इज इक्वल टू H1 plus H2 and the wave function can be written as the product of the wave functions of the individual electrons. So तो हमारे पास क्या है कि जो वेव फंक्शन है हमारे पास उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेव फंक्शन 1 2 है तो उसको हमने सेपरेटली क्या लिख दिया, वेव फंक्शन 1 एंड 2. तो 1 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोजीशन एंड द स्पिन कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 2 रिस्पेक्टिवली. तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन 1 इन द क्वांटम स्टेट डिस्क्राइब्ड बाय द पर्टिकुलर सेट ऑफ द स्पेस एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स एंड द पार्टिकल 2 इन द स्टेट ऑफ बी. तो डिस्क्राइब क्या है, अनदर सेट क्वांटम नंबर, देन द टोटल वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम वुड बी. तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वेव फंक्शन हमारे पास क्या है 1 2 इज इक्वल टू, हम इसको क्या कर दे, वेव फंक्शन ए 1 के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, वेव फंक्शन बी सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए. तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेव फंक्शन ए बी इज इक्वल टू वेव फंक्शन ए 1 वेव फंक्शन बी 2. ये हमने इस इक्वेशन दे दी नाउ 1. Now the wave function indicating that the electrons in 1 is in the state B and the electron 2 in state of the A. तो हम उस इक्वेशन को और क्या लिख सकते हैं, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी उसको हम इंटरचेंज कर कर हमने क्या लिख दिया, वेव फंक्शन बी ए इज इक्वल टू वेव फंक्शन बी 1 प्लस वेव फंक्शन ए 2. अब क्या है, प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड आउट करें, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस
फॉर द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। तो उसको हमने क्या लिख दिया कि वेव फंक्शन एक तो कंजुगेट की फॉर्म में वेव फंक्शन कंजुगेट ए बी, एक विदाउट कंजुगेट वेव फंक्शन ए बी, उसको हमने सेपरेटली एक कंजुगेट फॉर्म में और एक विदाउट कंजुगेट फॉर्म में। इसी तरीके से फिर क्या है, हमने सेकंड जो फोर्थ इक्वेशंस थी उसको हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया है वेव फंक्शंस की फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास वेव फंक्शन कंजुगेट बी ए, वेव फंक्शन बी ए इज इक्वल टू, उसको हमने कंजुगेट की फॉर्म आ गई यहाँ पर, फिर उसको विदाउट कंजुगेट, ये हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ गई। बट सिंस द टू इलेक्ट्रॉन्स आर indistinguishable and we should able to exchange their is changing 1 into 2 and 2 into 1 without changing the physically measurable quantity such as the probability density. Let us make this change on the probability density functions यानी कि conjugate wave function AB और without conjugate AB in equation third, then we obtain this equation। हमारे पास जो equation है वो क्या आ जाएगी, कंजुगेट फर्स्ट के लिए कंजुगेट बी, फिर विदाउट कंजुगेट हमारे पास वेव फंक्शन ए और बी। तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ गया, पहले सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, यानी कि जो हमारे पास इस साइड दिया हुआ था लेफ्ट साइड में, हमने उसको इंटरचेंज करके लिख दिया है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हैमिल्टोनियन की जो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, तो उसके बाद क्या है कि दैट इक्वेशंस दिस लीड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फंक्शंस, यानी कि एक कंजुगेट एंड विदाउट कंजुगेट, यानी कि हमारे पास दो फंक्शंस हो गए हैं। तो यहाँ से विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फंक्शन दैट इज़ द वेव फंक्शन ए बी एंड ए बी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या है, थर्ड और फोर्थ से। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है डज नॉट चेंज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस कैलकुलेट फ्रॉम द वेव फंक्शंस, यानी कि वेव फंक्शन क्या है, ए बी इजकल टू वेव फंक्शन ए और बी। तो ये ट्रू कब है, अगर हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं तो हमारे उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेव फंक्शन बी इजकल टू वेव फंक्शन बी वन प्लस वेव फंक्शन ए सेकंड के लिए। तो यहाँ से क्या है, वेव फंक्शन डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट द प्रॉपर वेव फंक्शन फॉर द डिस्क्राइबिंग द सिस्टम ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स। नाउ we are search for the proper form of the wave function that can be described accurately a system of the identical particle, and we shall just and see that the total wave functions describing the system of the identical particles must be either symmetry or antisymmetry with respect to an exchange of the position and the spin coordinate of the any two of them, and this is a total wave function must possess of property of exchange symmetry. Now let us consider the system of n identical particles है। तो विद द पोजीशन कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स वाई जेड, यानी कि ये फर्स्ट के लिए हो गई, फिर हमने सेकंड के लिए सो ऑन हमने n पार्टिकल्स के लिए रिप्रेजेंट कर लिया। तो स्पिन कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, जेड कंपोनेंट्स एंड द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ से हमने उसको एस जेड वन एस जेड टू सो ऑन एस जेड एन तक। तो टोटल स्पार्टल प्लस स्पिन वेव फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, हम उसको लिख लेंगे, ये हमारे पास वेव फंक्शन हो गया है और दूसरा हमारे पास क्या है, स्पार्टल पार्ट हो गया है, यानी कि स्पार्टल पार्ट प्लस स्पिन। तो यहाँ से हमने सिंपली फॉर्म में क्या लिख दिया, वेव फंक्शन वन टू सो ऑन एन तक। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर द रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या हो जाए, दैट रिप्रेजेंट लाइक h इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्र बाई 8 पाई स्क्र एम डेल वन स्क्र प्लस डेल टू स्क्र प्लस ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से हमने हमारे ये क्या है सेकंड के लिए लिख लिया। तो इट मीन्स क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी सेम एज बिफोर बिकॉज द पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल इन एवरी वे। तो यहाँ से हैमिल्टोनियन h इज इक्वल टू एच डैश इक्वल होगा। तो दैट इज द हैमिल्टोनियन इज invariant with the respect to the position and the spin of the particles, and this is called the exchange invariance of the Hamiltonian. फिर let us define the exchange of the operator P12 whose action is to interchange the position and the spin coordinate of any two particles says 1 and 2 in any wave function of the coordinate, that is P12 वेव फंक्शन है, ये हमारे पास एक्सचेंज फॉर्म में है। तो वो हमारे पास हमने यहाँ से यहाँ पे क्या था, हमारे पास 1 और 2, यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया है, 2 और 1। नाउ लाइक द
parity operator P12 is of the linear Hamilton operator having the eigen values plus minus 1 only, because हमने क्या लिया यूज़ किया P12 जो वेव फंक्शन इज इक्वल टू अल्फा वेव फंक्शन। तो यहाँ पर जो अल्फा है दैट इज़ द आइगन वैल्यूज ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ से हमने इसको क्या लिख लिया, दैट रिप्रेजेंट द पी स्क्वेयर अपॉन 1 2 वेव फंक्शन। तो हमारे पास जैसे ऊपर ये था सिंपल, हमने उसकी स्क्वेयरिंग कर दी है, तो ये इक्वेशन क्या होगी, पी स्क्वेयर 1 2 वेव फंक्शन इक्वल टू अल्फा स्क्वेयर वेव फंक्शन। बट द डेफिनेशन ऑफ द एक्सचेंज ऑपरेटर अप्लाइड ट्वाइस ब्रिंग द पार्टिकल्स बैक इनटू द ओरिजिनल पोजीशन। तो हमारे पास क्या हो गया, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो लीव द वेव फंक्शंस एक्सचेंज जो है वेव फंक्शन अनचेंज। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया V12 स्क्वायर वेव फंक्शन इज इक्वल टू वेव फंक्शन, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमारे पास जो इक्वेशन 6 थी उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं P12 वेव फंक्शंस यानी कि 1 2 सो ऑन एन तक प्लस माइनस वेव फंक्शन 1 2 3 एन। कंपेयर किया हमने इस इक्वेशन को फिफ्थ के साथ, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, वेव फंक्शन 2 1 3 एन और प्लस माइनस वेव फंक्शन 1 2 3 सो ऑन। तो वेव फंक्शन ऑफ द P12 हैव द property either of the remaining exchange or the changing the sign when any of two particles of the system are interchanged, and that is the wave function are either symmetry or the antisymmetry with respect to an exchange of the position and the spin coordinate of any two particles of the system. And we have already seen that the Hamiltonian for the system of identical particles is invariant with the respect to an exchange of any two of particles. तो दिस मीन्स हमारे पास क्या है, हैमिल्टोनियन एंड एक्सचेंज ऑफ द ऑपरेटर कॉम्यूटेट। तो कॉम्यूटेट प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई, तो HP12 इसको हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, HP12 फिर हमारे पास माइनस का साइन है, जो हमने पीछे टर्म लिखी थी उसको हम आगे लिख देंगे P12 H इक्वल टू 0। सो देयर फॉर द वेव फंक्शन ऑफ द हैमिल्टोनियन will also the wave function of P12 and propose the property of exchange symmetry, and those particles which can be described only the symmetry and total wave functions called the Bose। उसको हम क्या बोलेंगे, Bose particles और a boson। For bosons we have wave function 1 2 3 n, तो प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 3 n। All the particles having the इंटीग्रल इंक्लूडिंग जीरो स्पिन्स तो आर कॉल्ड द बोसोन। तो उसके एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएंगे, फोटोन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, या ग्राउंड स्टेट हीलियम एटम है। तो इनकी हमारे पास जो स्पिन है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0 या 1, दैट इज कॉल्ड द बोसोन। अदर हैंड हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स विच कैन हैव द डिस्क्राइब्ड ओनली द एंटीसिमेट्री टोटल वेव फंक्शंस दैट कॉल्ड द फर्मी पार्टिकल्स और द फर्मियोन्स। फॉर फर्मियोन्स में हमारे पास क्या होगा कि जैसे वेव फंक्शंस हैं 1 2 3 सो ऑन, तो हमारे पास क्या नेगेटिव साइन आएगा, वेव फंक्शन 2 1 3 यानी कि ये हमारे पास 1 2 था, यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 1 है। तो ऑल द पार्टिकल्स हैविंग द हाफ इंटीग्रल स्पिन आर फर्मियोन्स। एग्जाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन है और म्यूसोन्स एंड ऑल हैविंग द स्पिन कैसी होगी उनकी हाफ। And this is the difference between the two types of particles introduce many fundamental physical effects such as the superfluid state of the liquid and helium, ferromagnetic, ortho and para hydrogen and the Pauli principle। ये हमारे पास क्या है आज का आर्टिकल था जो हमने इंट्रोडक्शन और उसके बारे में हमने बताया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।